जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके? सब लोग बिल्कुल मजे में हैं? एकदम चकाचक रापचिक। एक बार फटाफट से कंफर्म करेंगे, टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन। डू इट फास्ट। हाय हाय हेलो क्या होता है? वी डोंट डू हाय हेलो इन आवर क्लास, वी बिलीव इन सेइंग जय हिंद ओनली। रोहित सिंह। हाँ अब ठीक है। So this is going to be a second class on the topic personality development for your upcoming SSB, ladies and gentlemen. Right? Jai Hind, Adil Sheikh, how are you, gentlemen? Yes, you are visible. Okay. And as you all know that today's topic is communication skills. जो लोग अब तक नहीं आए हैं, let them join. फिर we'll go with the topic. We'll discuss about the things. Jai Hind, Anjali Vishwakarma, how are you? Is everyone here? It's nice in the class though. Okay. So not an issue. How many of you are going for your SSB? मतलब जिन्होंने रिटन क्लियर कर रखा है, do it fast को टैग बॉक्स में बताएंगे how many of you are going for your SSB? Do it fast, ladies and gentlemen. आकाश, दीपाली शर्मा, जय हिंद गाइस। फटाफट से लाइव चैट में ये बताएंगे कि who all of you are going for your SSBs? जय हिंद। समृद्धि सिंह is going for SSB. Which entry समृद्धि? रॉबिन यादव अभी रिटन क्लियर नहीं हुआ। ओके, क्लियर हो जाएगा। समृद्धि सिंह, टेल मी अबाउट योर entry. Which entry? Dipali, previous class was awesome. Thank you so much. This class will be better than the last class. And this is what you all have to follow in your life, ladies and gentlemen. Your tomorrow should be better than today. Samriddhi Singh is going for NDA. I have cleared NDA written. Parth sir, Anjali Vishwakarma is also going for NDA SSB. Okay. Rest of tell me your entries. Okay. इस पर रिटन क्लियर करके पक्का जाऊंगा सर। ओके आकाश। ओके। सो एज यू ऑल नो कि हमारी क्लास का एक रिचुअल होता है। फटाफट से रिचुअल पूरा करेंगे, फिर वी विल मूव विद द क्लास। फटाफट से रिचुअल पूरा करेंगे, जगह लगाएंगे क्या? भारत माता की जय। भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे। दीपाली शर्मा इज आल्सो गोइंग फॉर इंडिया एंट्री। ओके दीपाली, भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे, फिर विल स्टार्ट विद द टॉपिक। डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। Okay, so as we all know that communication plays a major role in SSB. Like each and every task, whatever you are going to perform there is directly, indirectly related to communication itself. On the very first day when you are appearing for the screening test, you have to go through two kind of tests. One is OIR and second one is PPT, that is picture perception and discussion test. Discussion test, gentlemen, in that discussion test, you all have to participate in a group discussion. First of all, you'll have to give a quick narration of the story that you have written, and then you have to participate in the group discussion. And along with that, you'll have to influence people to come on a common consensus. And all these things are possible if and only if you have a good communication skill. Like if you don't have a good communication skill, ladies and gentlemen, nobody is going to hear whatsoever you are saying. But if you have good communication skill, ladies and gentlemen, अगर आप कुछ गलत भी बोलेंगे तब भी लोग आपको सुनेंगे। बट अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो नो मैटर आप कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं, नो मैटर आप कितना ज्ञान दे रहे हैं, nobody will hear you, right? So this session will revolve around this topic only, that what is communication skill, how you all can improve it in your day-to-day life, and what is the importance of this good communication skill. And I'll also share my personal experience that how I have improved my communication. Communication doesn't mean English. पहली बात तो ये समझेंगे, communication doesn't mean English. Communication is a totally different topic. English spoken is a totally different topic. Personality development is totally different topic. Personality development doesn't mean you are speaking a good English. Communication skill doesn't mean you are speaking magnificent English. No, not at all. Okay? So see, communication के अपने goals क्या होते हैं? To change behavior, to get action, to ensure understanding, to persuade, to get and give information. See gentlemen, communication का मतलब क्या होता है? Communication से अपना गोल क्या होता है कि अगर हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे कोई एक इंसान बहुत गुस्से में बात कर रहा है, बहुत एग्रेसिवली बात कर रहा है, लेकिन आपका कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग है, आपका स्किल इतना अच्छा है कि आप उससे बात कर रहे हो और उसके बिहेवियर को सडनली चेंज कर दे रहे हो कि जो बंदा थोड़ी पहले एकदम एग्रेसिव तरीके से बात कर रहा था वो बिल्कुल ही काम हो गया कि हाँ यार इसको जरा सुनते हैं कि ये बोल क्या रहा है। दिस इज व्हाट कम्युनिकेशन कैन डू। अब ये नहीं कि कोई बहुत एग्रेसिवली बात कर रहा है और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, आपकी वो कम्युनिकेशन स्किल का लेवल नहीं है कि आप उसके एग्रेशन को कामनेस में बदल पाओ। आपके पास नॉलेज बहुत है, आपके पास पॉइंट्स बहुत है उसको शांत करने, लेकिन आपके पास तरीका नहीं है कि उसमें पॉइंट्स को पुट कैसे करें। वो एग्रेसिवली बोलता रहेगा। तो कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन कैन चेंज द बिहेवियर ऑफ समवन टू गेट एक्शन। अब सी जनरल, अब एक चीज होता है जैसे बहुत सारे ऑफिस में जाते हैं किसी काम के लिए, हम बहुत सारे दफ्तरों में जाते हैं, हमने बहुत लोगों को देखा होगा कि जस्ट गोइंग जस्ट रनिंग फ्रॉम वन काउंटर टू अनदर और कोई भी उनका काम नहीं कर रहा है। द रीजन वो उस तरीके से बोल नहीं पा रहे हैं कि वो इफेक्टिव लगे। बट एक दूसरे साइड पे कोई बंदा आता है अपने किसी काम को लेके, वो इतना इफेक्टिवली अपनी बातों को प्रेजेंट करता है कि फटाक से सेकंड में सामने वाला बंदा एक्शन लेता है कि हाँ इतने अच्छे से बोला है, बातों में दम तो है, इसका काम तो करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट कम्युनिकेशन कैन डू। कम्युनिकेशन लोगों से काम करा सकती है अच्छे से, ठीक है, टू एंश्योर अंडरस्टैंडिंग। अब समझे जरा, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है इन योर लाइफ। सी, अंडरस्टैंडिंग इज द की टू बिल्ड एनी रिलेशनशिप। रिलेशनशिप डजंट ओनली मीन दैट रिलेशनशिप जो तुम समझ रहे हो, रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड, रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर ब्रदर, रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर सिस्टर, रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर फादर एंड मदर। अगर आपके अंदर वो कम्युनिकेशन स्किल ही अच्छी नहीं है कि आप अपनी बातों को अपने मम्मी पापा या भाई बहन अपने दोस्तों के सामने प्रेजेंट कर पाए, तो वो आपको समझेंगे कैसे? दे आर नॉट एस्ट्रोलॉजर, इट्स यू जो बताएगा उनको, इट्स यू जो उनको समझाएगा अपनी जरूरतें। वहां पे काम आता है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। अपने आसपास भी अपने लोगों को देखा होगा, यार कोई बंदा है ये कोई बात करता है ना तो
इतना इफेक्टिव लगता है कि अगर बोल दे कि सूरज पश्चिम में निकलेगा तो हम लोग मान लेंगे कि हाँ सूरज पश्चिम में निकलेगा। देखे होंगे आपने ऐसे लोग, और कुछ लोग अपने आसपास ऐसे भी देखे होंगे जो बड़ी अच्छी बातें करते हैं ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो हमें उनकी बातों में इंटरेस्ट ही नहीं रहता है। वो बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं लेकिन हमारे उनकी बातों में वो क्या ज्ञान दे रहे हैं हमारा उसमें इंटरेस्ट ही नहीं रहता है। ये क्यों होता है? क्योंकि नॉलेज तो है बट कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है उनके पास, तो लोग समझ नहीं पा रहे, अंडरस्टैंडिंग बैठेगी नहीं, राइट? तो पर्सुएड का सिंपल मतलब होता है कि नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर सकते, जैसे एक जगह बहुत हल्ला मचा हुआ, बहुत हल्ला मचा हुआ, आप जाते हो कम्युनिकेशन स्किल्स से लोगों को काम करते हो, अरे शांत हो मैं देख रहा हूं, मैं संभाल रहा हूं, बहुत फटाफट कहीं मची हुई है, कहीं छोटा सा आग भी लग जाता है तो भगवान से मच जाती है। एक वैसे सिचुएशन में आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है लोगों को काम कर सकते हैं, छोटी सी आग तो है, एक जगह शांति से आप साइड हो जाइए तभी आके कंट्रोल कर पाएंगे हम, अदरवाइज क्या होगा कि आग कंट्रोल होने के बजाय और ज्यादा भड़क जाएगी। दिस इज व्हाट पर्सुएशन मीन। आगे टू गेट एंड गिव इन्फॉर्मेशन, ये तो बेसिक सी चीज है। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल नहीं रहा तो आपके पास 2 मिनट कितना अच्छा इन्फॉर्मेशन आप दूसरे को दे ही नहीं पाओगे, आप दूसरे को दे ही नहीं पाओगे और ना ही आप दूसरे से इंफॉर्मेशन गैदर कर पाओगे। ऑल दिस थिंग्स आर पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन ओनली, लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑल दिस थिंग्स आर पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन ओनली। अब कम्युनिकेट करने के तरीके क्या होते हैं? कम्युनिकेट करने का तरीका डजंट मीन कि यू आर जस्ट सेइंग, यू आर जस्ट स्पीकिंग, नो नॉट एट ऑल। देयर आर मल्टीपल वेज टू कम्युनिकेट। व्हाट आर दे? स्पीकिंग, दैट जो हम लोग कर रहे हैं, राइटिंग जो आप लिख के बताते हो, बीच में मैं भी लिखता रहता हूं, विजुअल इमेजेस, आपके पीछे एक स्लाइड चल रही है, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। यहां विजुअल इमेजेस से मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं आपसे, यहां एक विजुअल इमेज दिखा के मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं। ऑल दिस थिंग्स आर पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन ओनली। बॉडी लैंग्वेज, अब समझो जरा, मैंने जो भी बातें बोली हैं, जो भी बातें स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, अगर मैं ऐसे पैकेट में हाथ डाल लेता और ऐसे करके नॉर्मली जैसे जिस टोन में बात कर रहा हूं वैसे मैं बात करता है, जितनी बातें बोली मैं ऐसे करके बोल के चला जाता, क्या कोई इंटरेस्ट आता मेरी बातों में? नहीं आता, नहीं आता। दिस इज व्हाट बॉडी लैंग्वेज डू। बॉडी लैंग्वेज कैन एनहांस द इफेक्ट ऑफ व्हाट यू आर सेइंग, लेडीज एंड जेंटलमैन। बॉडी लैंग्वेज कैन एनहांस द इफेक्ट। वो एक अलग टाइप का इफेक्ट डालती है, लोगों को लगता है कि हाँ यार बहुत तो सही बोली, मतलब आग से लग जाती है। दिस इज व्हाट बॉडी लैंग्वेज कैन डू। कई बार जरूरी नहीं होता कि आप बात करें, आपका बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि सामने वाले में इंटरेस्टेड है कि नहीं है। लेट्स से कि 2 पीपल आर टॉकिंग, आप किसी से बात कर रहे हो एंड सामने वाला इज कांस्टेंटली बिजी ऑन हिज फोन, ही इज जस्ट स्क्रॉलिंग हिज फोन, ही इज लुकिंग हियर एंड देयर, तो आपको तो ये समझ में आ जाएगा कि ही इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू मी, राइट? दिस इज व्हाट बॉडी लैंग्वेज कैन डू। और तुम आप किसी से बात करो, सामने वाला बहुत ध्यान से सुन रहा है, आपकी हर एक बात पे नोट कर रहा है, अच्छा ओके, तो क्या लगता है यार ही इज इंटरेस्टेड इन माय वर्ड्स, ही इज इंटरेस्टेड इन माय टॉक, राइट? दिस इज व्हाट बॉडी लैंग्वेज कैन डू। बॉडी लैंग्वेज बोलने के लिए जरूरी नहीं है, बॉडी लैंग्वेज सुनने के लिए भी जरूरी है, तब सामने वाले को पता चलेगा हाँ ये हमारे में इंटरेस्टेड तो है भाई। ये डे टू डे लाइफ में आपको लेकर के आना है, ये चीजें डे टू डे लाइफ में लेकर के आपको आनी है। यही नहीं, डे टू डे लाइफ में जब आप लाओगे तभी जाकर के एसएसबी में काम आएगा। एसएसबी में जब हम ग्रुप डिस्कशन में वो सीमित सर्कल में बैठे रहते हैं, कोई अपनी स्टोरी नरेट कर रहा होता है तो आप ध्यान से उसकी बातों को सुनते हैं, जब ऐसे करके नोट करते हैं उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, तो उसको लगता है कि हाँ यार ही इज लिसनिंग टू मी। तो होगा क्या कि जब किसी को पता चला कि आप उसे सुन रहे हो, तो फिर जब आप स्टोरी बोलोगे सामने वाला पक्का आपकी बात सुनेगा। दिस इज हाउ दिस बॉडी लैंग्वेज कैन हेल्प यू इन योर ग्रुप डिस्कशन। आप बताओ, अगर आप अपनी स्टोरी पहले नरेट कर रहे हो, देख रहे हो यार कि कोई नॉर्मली ऐसे इधर-उधर देख रहा है, तुम्हारी स्टोरी पे कोई ध्यान ही नहीं रहे, तो जब वो अपनी स्टोरी नरेट करेगा आप सुनोगे उसकी बातें, नॉट एट ऑल। आप फॉर श्योर मैं लिख के दे सकता हूं, आप भी इंटरेस्टेड नहीं होगा यार ये मेरी स्टोरी नहीं सुन रहा था उस समय। तो इसलिए बॉडी लैंग्वेज बहुत 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 ज्यादा जरूरी है डे टू डे लाइफ में। बॉडी लैंग्वेज से तुम्हारा कॉन्फिडेंस पता चलता है। जैसे इफ एंटरिंग इन योर इंटरव्यू ऑफिस रूम और तुम ऐसे झुक के चल रहे हो, ऐसे करके आ रहे हो, ऐसे नीचे करके आ रहे हो, मरीज जैसे ऐसे मान लो कि मैं यहां से नॉक करके अंदर आ रहा हूं और मैं सर नीचे गुड मॉर्निंग सर और ऐसे करके मैं आया और जाके ऐसे थैंक यू सर करके बैठ गया, तो उसे क्या लगेगा इंटरव्यू को? क्या वो जरा सा इंटरेस्टेड रहेगा मेरी बातों में? जरा सा इंटरेस्टेड रहेगा मेरे इंटरव्यू लेने में? नहीं रहेगा सर, बिल्कुल नहीं रहेगा। बस यही मैं चाह रहा हूं, ऐसे करके मैंने नॉक किया, गेट ओपन किया, गुड मॉर्निंग सर, या फिर मैं कम इन सर, तो डेफिनेटली सिंह यस कम इन, राइट? और आप कॉन्फिडेंस के साथ चेहरे पे स्माइल लेके जा रहे हो और जाकर उसको विश कर रहे हो गुड आफ्टरनून सर। इसमें क्या लिखा? आपको बॉडी लैंग्वेज चलता है, बॉडी लैंग्वेज आपको कॉन्फिडेंस को बता रही है कि आपको डर नहीं है कि सामने वाला कौन बैठा है। आप उस मोमेंट को एंजॉय करोगे, आपका बॉडी लैंग्वेज बताएगा, आपको कहीं एक सर्टिफिकेट माथे पे चिपका के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बॉडी लैंग्वेज जाकर बताएगा, चेस्ट अप रहेगा, चेहरे पे स्माइल रहेगी, चेहरे पे अलग चमक, जाकर कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो उसको गुड मॉर्निंग सर, तो अच्छा रहेगा। पर मरियल की तरह जाके बोलोगे तो खुद इंटरेस्ट नहीं होगा, तो पहले बोलेगा यार बस 5 मिनट 10 मिनट को बैठा के हाथ चल पता करते, फिर बोलते जय श्री राम, दबा हो जाएगा तुम, समझे? तो ऐसे करके वो निकाल देगा तुम्हें। अब जब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की, वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, स्पीकिंग क्लियरली एंड इफेक्टिवली। अब क्लियर बोलना और इफेक्टिवली बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तुम ओल्क्यू देखोगे तो उसमें एक चीज है पावर ऑफ एक्सप्रेशन। वो पावर ऑफ एक्सप्रेशन आएगा कहां से? जब आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं रहेगा। तो जब आप क्लियर बोल ही नहीं पाओगे तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन आएगा कहां से? एक्सप्रेस कैसे करोगे अपनी चीजों को? आप इन्फ्लुएंस कैसे करोगे लोगों को? पॉसिबल नहीं है। तो ऑल दिस थिंग्स कैन बी डन इफ एंड ओनली इफ जेन्युइन बाय दिस कम्युनिकेशन स्किल, इसलिए साफ बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो वाला नहीं कि मुंह से बाहर निकाल के बात कर। तो इसलिए आप जो भी बोल रहे हैं, आपके वर्ड्स क्लियर होने चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइक व्हाटएवर आई एम सेइंग राइट नाउ, अगर मैं ऐसा कुछ भी करके बोल रहा होता हूं, मुंह में बोल के चला जाता, तो तुम्हें इंटरेस्ट रहता है क्या सुनने में? नॉट एट ऑल सर, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहते हम। तो जो भी चीजें बोल रहे हैं उसको क्लियर बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्टिव लिसनिंग स्किल्स, वापस वही बात, पहले दिन में यह समझाया था कि एक अच्छा वक्ता होने के लिए एक बहुत अच्छा श्रोता होना जरूरी है जेन्युइन। टू बी अ गुड ऑरेटर यू नीड टू बी वेरी गुड लिसनर जेन्युइन। अगर आप सुनोगे नहीं तो आप कभी नहीं बोल पाओगे। सिंपल सी बात है, जब हम बच्चे थे या हमारे घर में जब बहुत छोटे बच्चे रहते हैं तो हमारे घर की लेडीज या पापा तक भी या घर के बड़े बुजुर्ग भी क्या करते हैं? बच्चे से बात करते हैं। हमें पता है कि बच्चा बोल नहीं पाता है, लेकिन इसलिए हम क्या करते हैं? उससे बात करते हैं। कारण क्या है कि जब तक वो सुनेगा नहीं तब तक वो बोलेगा नहीं। जब तक वो बच्चा सुनेगा नहीं तब तक वो बोलना कैसे सीखेगा? आप एक छोटे से बच्चे को आप रखिए, आप उससे बात मत करिए, बिल्कुल उसको कुछ मत सुनाइए, उससे इशारे में बात कीजिए। मैं लिख के देता हूं, बच्चा चाह के भी बोल नहीं पाएगा, उसने सुनी ही नहीं चीजें, उसने बोलना सीखा ही नहीं है। इसलिए ये एक्टिव लिसनिंग स्किल बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पहले एक अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक अच्छे वक्ता बन पाएंगे। एग्री करेंगे आप मेरी बातों से? यस और नो? डू यू ऑल एग्री बाय दिस पॉइंट? टेल मी लाइक चैट। अगला पॉइंट जो है अपने पास, दिस इज यूजिंग अप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड टोन। यूजिंग अप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड टोन का मतलब हो गया मेरे भाई, कई जगह पे कहीं पॉइंट पे हमें अपना टोन बहुत सॉफ्ट भी रखना पड़ता है और किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके अपना टोन, अपना पिच एकदम हाई पे ले जाना पड़ता है। जैसे अगर कभी हमें एज अ लीडर जब हम खड़े हैं, जब एज अ लीडर हम खड़े हैं, फौज में अफसर बनकर खड़े हैं, हमारे सामने हमारी 100 लोगों की टुकड़ी खड़ी है, जब उनके अंदर जोश भरना हमें, तो हमारा टोन एकदम पीक पे होना चाहिए। ये समझो, जब लोगों के अंदर वो चिंगारी लानी है, आग लाना है,
तो उस समय हमारा टोन एकदम आगे की तरह होना चाहिए। लेकिन किसी ऐसे जगह पे हम मान लो किसी फ्यूनरल वगैरह में है, वहां पे हम किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं या किसी को श्रद्धांजलि देने गए हैं, वहां पे हम ऐसे जोश में बात नहीं कर सकते, वहां पे हमें सॉफ्टली बात करना पड़ेगा। तो सेम बंदे को अपने कम्युनिकेशन स्किल को ऐसा रखना पड़ेगा मेरे भाई कि कहीं जाकर के आप बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, आप लोगों को समझा पा रहे हैं बहुत प्यार से, और किसी जगह पे जाकर के जहां जरूरत है वहां आपकी पिच, आपका टोन इतना हाई है कि सुनने वाले अगर मुर्दा भी रहेगा तो मुर्दे के अंदर जाना जाए। दिस इज व्हाट अ गुड लीडर डू, दिस इज व्हाट अ गुड लीडर डू लेडीज एंड जेंटलमैन, यू ऑल आर द लीडर्स ऑफ टुमारो। कल को जाके आपको यही काम करना है कि अगर इफ यू आर गोइंग फॉर अ मिशन, तो जब आप ब्रीफ कर रहे हो अपने बंदों को, तो समय आपकी टोन, आपका कम्युनिकेशन, आपका पिच इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि सामने खड़े 10 बंदे ये सोच रहे कि यार जान लगा देंगे। दिस इज व्हाट कम्युनिकेशन कैन डू। वहां पे नॉलेज काम नहीं, वहां पे कम्युनिकेशन काम आएगा। वहां जाकर सॉफ्टली बात करोगे तो उनके अंदर जोश ही नहीं रहेगा, वो लड़ेंगे कैसे और कभी नहीं लड़ पाएंगे। समझे बात? शेर की तरह लड़ना है तो शेर की तरह दहाड़ने भी आना चाहिए। कई बार आपकी दहाड़ इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि लड़ने की जरूरत भी ना पड़े। समझे? ये बात ध्यान में रखेंगे आप। हर जगह लड़ना भी जरूरी नहीं होता, आपकी दहाड़ में इतनी ताकत होनी चाहिए कि सामने वाले कांप जाएं। अब जरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं मेरे भाई, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज अगेन वही बात, बॉडी लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप चेस्ट अप करके, सर ऊपर करके, ऐसे चेहरे पे चमक और स्माइल के साथ जब किसी रूम के अंदर आप एंटर करते हैं तो इंटरव्यू करते हैं, यार कोई तो बंदा आया है, इससे तो बात करनी है, अच्छे से बात करनी है, इसके अंदर वो लीडर शायद छिपा हुआ है जिसकी जरूरत फौज को है। लेडीज एंड जेंटलमैन, यस और नो? अगर आप मरियल वाले एटीट्यूड के साथ इंटरव्यू देने जाएंगे तो नो बडी विल बी इंटरेस्टेड टॉकिंग टू यू। कोई नहीं सुनना चाहेगा आपकी बातों को, कोई भी नहीं। आप उस इंटरव्यूअर को छोड़िए, जो वहां पे अदर स्टाफ्स होते हैं वो भी आपको शायद वैल्यू ना दें। आपको सबसे पहले अपना बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग करना पड़ेगा, आपको अपने चलने के तरीकों को चेंज करना पड़ सकता है, आपके खड़े रहने के तरीके को भी चेंज करना पड़ सकता है, आपके बैठने के तरीके को भी चेंज करना पड़ सकता है। दिस इज व्हाट बॉडी लैंग्वेज इज। और ऐसा नहीं है कि बॉडी लैंग्वेज के बारे में सबको नहीं पता है। ईच एंड एवरी वन ऑफ यू नो दैट व्हाट अ गुड बॉडी लैंग्वेज इज। बस चीज ये है कि हम वो करते नहीं है। अब सिंपल सी बात है, आप किसी के साथ चल रहे हो, एक बंदा आपके साथ है जो फुल कॉन्फिडेंस में चेस्ट अप करके अच्छे से चल रहा है, और एक बंदा ऐसे झुक के चल रहा है। आप किसके साथ चलना पसंद करोगे? आपको किसके अंदर कॉन्फिडेंस बोलने दिखेगा? जिसका चेस्ट अप है। तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर। अगर आप किसी चेयर पे बैठे हो, एक आदमी ऐसे पसर के बैठा हुआ है और एक आदमी बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे बैक स्ट्रेट करके बैठा हुआ है, आपको किसको देखकर अच्छा लगेगा? सचिन जो बैक स्ट्रेट करके बैठा हुआ है। तो आप नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर। ये पता सबको है, बट हम करते नहीं है। हम ये सोचते हैं कि जहां जरूरत होगी वहां पे कर लेंगे, और ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। क्योंकि जो हमारे अंदर आदत भर गई है रैंडमली कैजुअली रहने की, वो वहां भी कैजुअली निकल के आ जाता है। तो instead of showing these things to interviewer, do these things in a day to day life। आपको वहां अलग से दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो नेचुरली बाहर आएगा, वहां पे। Yes or no? Next is facial expression। facial expression means a lot। ये छोटा सा बस एक चेहरा नहीं है, हजार चीजें लिखी होती हैं आपके चेहरे पे। And someone who is taking your interview is master of reading whatsoever is written on your face, gentlemen। उसने पढ़ाई करी है, एक्सपीरियंस गेन करा है। आपकी जुबान कुछ और बोलेगी, आपकी शकल कुछ और बोलेगी, आपकी शकल पे लिखी हुई चीज को ज्यादा वैल्यू दिया जाएगा। इसलिए फेशियल एक्सप्रेशंस पे भी कमांड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात ध्यान में रखें आप। चेहरे पे स्माइल जरूरी है, बट स्माइल कुछ बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए जिससे वो बनावटी लगने लगे। समझ गए? तो फेशियल एक्सप्रेशन पे कंट्रोल जरूरी है। जेस्चर एंड पोस्चर, अगेन वही बात, जेस्चर एंड पोस्चर। अगर मैं नॉर्मली यहां ऐसे करके खड़े होकर, ऐसे जितनी भी बातें मैंने बताई, मान लो मैं ऐसे खड़े होकर बोलता, बातें तो सेम बोलता मैं, बट क्या तुम सुनते मेरी बातों को? क्या तुम ऐसे करके रैंडमली ऐसे खड़ा होकर जो बातें मैंने बोली हर वही बात मैं बोलता ऐसे करके खड़ा होकर? क्या तुम इंटरेस्टेड होते? नहीं सर, बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते। अब मैं इस तरीके से बात कर रहा हूं कि चेस्ट अप है, मैं ऐसा लग रहा है मैं आपकी आंखों में आके डाल के बात कर रहा हूं। नो मैटर मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूं, अपने घर पे बैठे, आई कैन फील दैट यू ऑल आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। और आपको ये फील हो रहा होगा सर सामने से बात कर रहे हैं। अगर मैं ये जेस्चर्स नहीं दूंगा अपने हाथों से बात नहीं करूंगा, जनरल विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। बट हां, जरूरत से ज्यादा जेस्चर भी अच्छा नहीं होता, पार्टिकुलरली एसएसबी में जरा अपने जेस्चर पे कंट्रोल करना पड़ता है। यहां एज अ टीचर बात कर रहा हूं मैं, एसएसबी में आपको अपने जेस्चर पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। वहां जेस्चर जरूरत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कई बार जरूरत से ज्यादा जेस्चर भी बेकार लगता है, ठीक है? जरूरत से ज्यादा जेस्चर जब दिखाते हैं तो उसे साइकोलॉजिस्ट या इंटरव्यूअर इस वे में इंटरप्रेट करता है कि यार इसके अंदर कॉन्फिडेंस और नॉलेज की कमी है, दिस इज द रीजन ये इतने सारे जेस्चर दिखा रहा है यहां पे। बट यहां पे आई एम टॉकिंग एज अ टीचर, तो यहां पे जेस्चर इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो सेम जेस्चर यहां पे देना ज्यादा जरूरी है और वहां ना देना ज्यादा जरूरी है। इस बात का ध्यान रखना। या आपको डिसाइड करना पड़ेगा कहां पे कितना जेस्चर इंपॉर्टेंट है, राइट? नेक्स्ट थिंग इज पोस्चर। पोस्चर अगेन वही वाली बात, अगर आप चेयर पे बैक स्ट्रेट करके नहीं बैठे रहेंगे तो क्या लगेगा यार, अंडर कॉन्फिडेंट बंदा, बड़ा कैजुअल एटीट्यूड है। इंटरव्यू के सामने आप गए ऐसे पैकेट में हाथ डाल के और जाकर मस्त चेयर पे बैठ गए, एक पैर दूसरे पैर के ऊपर चढ़ा लिया। क्या वो आपकी बातें सुने? क्या वो आपके इंटरव्यू लेने में जरा सा इंटरेस्टेड रहेगा? नो मैटर आप कितने अच्छे हैं, नो मैटर आपके अंदर कितना अच्छा नॉलेज है, लेकिन वो 110% आपको वहां से कॉन्फ्रेंस आउट करेगा, 110%। इसलिए जेस्चर और पोस्चर दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब जब बात करते हैं रिटन कम्युनिकेशन, क्राफ्टिंग क्लियर एंड कंसाइज मैसेजेस। अब कंसाइज मैसेजेस फौज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक लाइन में ज्यादा चीजें लिख देना। हमारे यहां एक हिंदी में वर्ड होता है गागर में सागर भरना, मतलब तुमने बस एक लाइन है बट उसमें बहुत सारे मैसेजेस छिपे हैं, और यही तुम्हें टीएटी और एक टास्क होता है जीपी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, वहां पे करना होता है। लिखो कम बट उसमें मैसेजेस ज्यादा क्लियर होने चाहिए, और जो भी लिखो उसे क्लियर लिखो मेरे भाई, समझे? इसलिए जब आप एसआरटीज लिखते हैं, जब आप टीएटीज लिखते हैं, जब आप जीपी लिखते हैं, तो उसमें कॉमा देके लिखा जाता है। कभी भी कॉमा देके लिखने से क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा स्पेस कवर नहीं कर रहे हो, और जो मैसेज कन्वे करना चाहते हो वो कन्वे भी हो जाता है।
दिस इज व्हाई कंसाइज मैसेज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? प्रॉपर यूज ऑफ ग्रामर एंड पंक्चुएशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर सही टाइम पे फुल स्टॉप ना लगाओ तो उसका मीनिंग बदल जाता है। सही टाइम पे फुल स्टॉप ना लगाओ तो मेरे भाई सेम सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है। समझ गए ये बात? अब जरा बात करते हैं विजुअल कम्युनिकेशन की। इफेक्टिव यूज ऑफ विजुअल चार्ट्स, ग्राफ एंड इमेजेस। ये तुम्हारे लिए वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डे टू डे लाइफ में, लाइक अगर मैं आज तुम्हारे सामने कम्युनिकेशन में बात कर रहा हूं, मेरे पीछे ये स्लाइड्स नहीं होते तो तुम्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट कम आता मेरी बातों को सुनने में। इसलिए विजुअल कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़े चार्ट्स, ग्राफ्स, इमेजेस, थोड़े अट्रैक्टिव सी चीजें डालनी ज्यादा जरूरी है। जैसे अगर तुम पीपीटी देखोगे हमारी, तो हमारी पीपीटी में क्या लिखा है? हमारी पीपीटी में यहां देखोगे कुछ फौज के बंदे हाथ में अपना गन लगा लेके, यहां पे आप देखोगे आर्मी का हेलीकॉप्टर है। तो ये सारी चीजें क्यों है? ये सारी चीजें इसलिए है मेरे भाई, ताकि तुम हमेशा हमेशा इस बारे में सोच सकोगे यार यहां पे जाना है हमें। समझ गए क्या? ये चीज तुम्हें हर पॉइंट पे मोटिवेट करती रहे, इसलिए इस स्लाइड का बैकग्राउंड ऐसा रखा गया, ऐसा रखा गया। दिस इज व्हाट विजुअल कम्युनिकेशन डू, दिस इज व्हाट विजुअल कम्युनिकेशन डू जनरल। समझ गया? अब ये विजुअल दे रखा है ताकि तुम समझ सको। हुआ क्या कि कोई मैसेज आया तुम्हारे पास, तुम्हारा दिमाग सबसे पहले क्या करेगा? उसको डिकोड करेगा, फिर इंटरप्रेट करेगा, फिर कुछ इनकोड करके मैसेज ट्रांसफर करेगा सामने वाला बंदा, फिर उसको डिकोड करेगा, इंटरप्रेट करेगा, इनकोड करके फिर कोई मैसेज भेजेगा। ये सर्कल ऐसा ही चलता रहता है कि जो भी मैंने तुम्हें बोला, सबसे पहले तुमने सुना उसको, पहले उसको डिकोड किया, अब इंटरप्रेट करो तो अच्छा अच्छा ऐसे बोला, फिर तुम्हारी तरफ से जवाब आएगा। तो ये कम्युनिकेशन ऐसे ही चलता है। अगेन चार्ट एंड ग्राफ, अगर ये इमेजेस नहीं डालते तो इंटरेस्टिंग नहीं लगती ये चीजें, तब ये चीजें इंटरेस्टिंग नहीं लगती आपको। ठीक है, वही चीज वापस से, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या क्या कर सकता है? कम्युनिकेशन स्किल्स क्या क्या कर सकता है? कम्युनिकेशन स्किल्स कंट्रीब्यूट टू करियर सक्सेस। यहां तो अपना मेन गोल ही यही है सर, यहां तो हमारा मेन गोल ही करियर सक्सेस है सर। आवर अल्टीमेट गोल इज टू गेट टू एसएसबी एंड कम्युनिकेशन स्किल प्लेज अ मेजर रोल ओवर देयर जजमेंट। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन स्किल, इसलिए इसको इनहैंस करना जरूरी है। इनहैंस करने की बात भी करेंगे कैसे करना है, टेंशन मत लो। इनहैंसिंग रिलेशनशिप पर्सनल एंड प्रोफेशनल, वापस वही बात कि जब आप अपनी बातों को क्लियर नहीं रखोगे दूसरों के सामने, तो सामने वाला आपका पॉइंट ऑफ व्यू कभी समझ ही नहीं पाएगा। तो स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनेगा कैसे? चाहे वो पर्सनल रिलेशन हो, चाहे वो प्रोफेशनल रिलेशन हो। अगर आप कल को फौज में जाते हैं, आप अपनी बातों को क्लियरली प्रेजेंट नहीं कर रहे हो अपने सीनियर के सामने, तो हाउ विल ही गेट टू नो कि आप कहना क्या चाहते हो, आपके इंटेंशंस कितने अच्छे हैं। इसलिए कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रिवेंटिंग मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर आप बातों को पहले से ही क्लियरली बताओगे जनमैन, तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे ही नहीं, और कभी अगर हो भी गए तो योर कम्युनिकेशन स्किल्स कैन रिजॉल्व एनी कॉन्फ्लिक्ट। मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर रखेंगे अगर आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन रही तो। और ये डे टू डे लाइफ में आपने देखा होगा कि आपने बोला कुछ और, सामने वाले ने समझ लिया कुछ और कहानी गड़बड़ हो गई। क्यों? क्योंकि आपने अपने कम्युनिकेशन पे ढंग से काम ही नहीं किया था। अगर आप अपने कम्युनिकेशन पे डे टू डे लाइफ में काम करते तो फॉर श्योर मेरे भाई वहां मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं होता। आपने अपनी बातों को उतने क्लियरली, उतने इफेक्टिवली प्रेजेंट ही नहीं किया था। यह है रीजन मिसअंडरस्टैंडिंग का। बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रैपो, रैपो का मतलब भाई इज्जत, ट्रस्ट, विश्वास और इज्जत कब बढ़ेगी? जब आपके अंदर कम्युनिकेशन आपका अच्छा होगा, आप बातें अच्छी करोगे, लोग आपकी बातें सुनेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग किसी तरीके का नहीं होगा, तो खुद ब खुद आपका म्यूचुअल ट्रस्ट बनता जाएगा एंड दैट विल enhance or improve your relationship in day to day life. अब कम्युनिकेशन स्किल डेवलप, कम्युनिकेशन स्किल एसएसबी डेट्स आउटसाइड, या एसएसबी डेट आउटसाइड क्या होता है? अब जरा बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कैसे करेंगे। प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये हो गया कि खास करके हमारी जनरेशन में ये चीज सबसे बड़ी समस्या है कि व्हेन वी टॉकिंग टू समवन वी कंटिन्यूअसली फोकस ऑन आवर फोन, वी आर जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू इट। ऐसे भी डेट आउट, वेरी गुड फटाफट से डेट सेलेक्ट कर लेंगे आप लोग। जस्ट सजेशन कि बहुत स्टार्टिंग के डेट मत सेलेक्ट करना, बहुत एंड के डेट मत सेलेक्ट करना। जो भी सेंटर आपका आ रहा है, ट्राई टू सेलेक्ट द डेट्स इन बिटवीन, बीच के जो डेट्स होंगे वो सेलेक्ट करना, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके। एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये होता है मेरे भाई कि व्हेन यू आर लिसनिंग टू समथिंग, फोकस ऑन दैट, क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक्स वहीं से अवॉइड हो जाती हैं अगर आप चीजों को ध्यान से सुन ले तो। नहीं तो हमारा क्या होता है कि व्हेन आवर मदर इज सेइंग समथिंग वी जस्ट फोकसिंग ऑन आवर फोन, और लास्ट में मम्मी के द्वारा पीटे जाते हैं। इसलिए एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सीक फीडबैक एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। ऑन द वेरी फर्स्ट डे आई टोल्ड यू, समवन आस्क्ड मी कि सर हाउ टू हैंडल क्रिटिसिज्म। आई टोल्ड यू कि लेडीज एंड जेंटलमैन, डोंट टेक इट एज क्रिटिसिज्म, टेक इट एज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। टेक इट एज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। सर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म क्या होगा? अगर आपको किसी ने बोला है कि यार तेरी इंग्लिश बड़ी खराब है, तो आप उस चीज को समझो कि हां मेरी इंग्लिश तो खराब है, आई हैव टू वर्क ऑन दैट, एंड यू वर्क ऑन इट, और कुछ महीने बाद यू स्टैंडिंग ऑन द फ्रंट ऑफ सेम पर्सन, और फिर तुम उससे इंग्लिश नहीं बात करोगे, आपने क्रिटिसिज्म को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में बदल दिया। आपने सेम क्रिटिसिज्म को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में बदल दिया। जैसे वो कहते हैं ना कि अगर आपके ऊपर ईंट फेंका जाए तो आप उसी ईंट से अपना मकान बना लो, आप उसी ईंट से अपना मकान बना लो। दिस इज व्हाट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज। क्रिटिसाइज कर रहे हो, करने दो ना, क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आपको इंप्रूव करने के लिए बोल रहे हैं, समझे? इसलिए मैं चीजों को सोचो। एंगेज इन पब्लिक स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज व्हेनेवर यू गेट अ टाइम, व्हेनेवर यू गेट एनी चांस टू डू पब्लिक स्पीकिंग, डू इट। लेट मी शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस जनरल। अभी तुम मेरे को देखोगे सर आपके तो बात कॉन्फिडेंस, सर आप इंग्लिश में बात करो, सर आप हिंदी में बात करो, सर आपका पिच कभी यहां रहता है, सर आपका पिच कभी यहां रहता है, सर आप हंस के बात करो तो बिल्कुल इमोशनल तरीके से बात करते हो, सर हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? आई एम द सेम पर्सन व्हेन आई वाज अपीयरिंग फॉर माय इंडिया जनमैन, आई हैड दैट फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एट द टाइम। तुम इंग्लिश छोड़ो, मैं हिंदी में 4 लोगों के सामने बात नहीं कर पाता था। बट देन इन द 2021 व्हेन आई केम टू दिल्ली, आई रियलाइज्ड दैट आई हैव टू वर्क ऑन माय वीकनेस एट एनी कॉस्ट, आई हैव टू वर्क। सो व्हाट आई डिड, आई यूज्ड टू राइट पोएट्रीज, I started performing them in front of people. I connected with various platforms in Delhi. I went there, I paid some amount to them, and then I performed in front of 20, 25, 30, 50 people, and then recorded my video and posted it on YouTube. With time, subsequently, my communication skills improved. Then I came in this profession of teaching, and after that,
मैंने एक साथ 300 बच्चों को भी पढ़ाया है, अभी लाइव में ऑनलाइन में एक साथ 10,000 बच्चों को भी पढ़ा रहा हूं। मैंने एनसीसी में जाकर के गेस्ट लेक्चर दिया है, जहां पे एक मेरे सामने 500 एनसीसी के कैडेट बैठे हुए थे, मल्टीपल ऑफिसर्स बैठे हुए थे, आई एम द सेम पर्सन। अगर मैंने अपनी कमियों को उस समय नहीं पहचाना होता, मैंने ये पब्लिक स्पीकिंग पे पार्टिसिपेट नहीं किया होता, मैंने अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं किया होता, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना छोड़ा, मैंने वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की थी, तो क्या मैं अभी आपके सामने इस तरीके से बात कर पाता? नहीं सर। दिस इज व्हाट एंगेजिंग इन पब्लिक स्पीकिंग कैन डू। इट कैन टोटली ट्रांसफॉर्म यू फ्रॉम इनसाइड आउट। Video please, gentlemen, you'll have to talk to your parents that my ultimate goal is to join National Defense Academy. Tell them, use your communication. Check your communication there only. Convince them by your wise words. Right? If you feel like that you're not getting any environment, if you feel like you're not getting any opportunity to do public speaking, you don't have any such friend, you don't have any such circle in front of whom you can speak, in front of whom you can practice, so better to purchase some communication courses. Better to purchase some communication courses. At the end, if you are purchasing some communication courses, gentlemen, it's a kind of investment, it's not a liability. You're investing on yourself, and investing on yourself is the best investment that anyone can do. Remember this, no matter where if you are investing in various stocks or not, if you are investing in yourself, this is your best investment. Trust me. In day-to-day life, what you can do to improve your communication, you can read books, articles on communication. That means there are plenty of books, there are plenty of articles, right now there are plenty of videos on YouTube where you can go and learn about communication skills, where you can get multiple ideas that how you can do these things in your day-to-day life. Reading books is also helping you in enhancing your vocabulary, it is enhancing your grammar knowledge, it is providing you a bit confidence to speak English. If you are reading English books, right, it is improving your pronunciation. Understood or not? Again, just I want to say this one more time, that good communication doesn't mean having good English. If you are able to communicate in your own mother tongue, that means you have a good communication. But if you are going for SSB, gentlemen, the language of communication is English. So at that point of time, you will face this problem, language barriers. How you can improve this? Sir, I'll have to learn English. Sir, I have to practice English. Where you'll practice? Sir, in front of my friends. Right? You'll have to do this thing, gentlemen. Whenever you get a chance, practice communication. Speak as much as you can. But again, listen more than you speak. Listen more than you speak. Right? See, you'll have to make strategies. You'll have to make proper strategies to overcome these barriers. Like my barrier at that point of time was that lack of confidence. I understood my barrier, that this is the barrier that is stopping me from communicating, that is stopping me from expressing my point of view. मैंने क्या किया उस टाइम पे? I made a strategy, I found a way, I communicated, I contacted to those platforms that I want to perform on your platform, kindly give me that opportunity. I paid some sort of 300-500 rupees to them, then I went there, I performed in front of people, holding a mic on a platform, and what happened? Right now, I'm giving a lecture on communication skill. The same guy, the same person who was facing different and many kind of issues in communication is giving lecture to you. कैसे हुआ ये? Because I worked on my barriers, I worked to remove my barriers, I worked to break my barriers. Yes or no? You'll also have to do these things, gentlemen. Have this in your mind. What makes a good communicator? Clarity. Most important thing, clarity. What does this mean? Like whatever you're saying, that should be clear. Not only about the words that you're saying. It should be clear in your mind. You should have a clarity of thoughts. If you have that clarity in your thoughts, ladies and gentlemen, you'll not face any problem in expressing your point of view. अगर आपको यही समझ में नहीं आ रहा है, आप अपने दिमाग में खुद से ही लग रहे हो कि यार एक्स सही है या वाई सही है, तो आप लोगों को कैसे बताओगे कि एक्स सही है या वाई सही है? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नीड टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग, यू नीड टू हैव क्लैरिटी इन योर थॉट्स, राइट? You'll have to work on that thing, clarity of thoughts. Then again, integrity. What does this mean? What does integrity mean? Tell me जरा एक लाइव चैट में बताएंगे कि integrity का मतलब क्या हुआ? लास्ट क्लास में आपको मैंने इन्फॉर्म किया था ये बात. जरा एक बार बताएंगे what is the meaning of integrity? Do it fast. I told you on the very first, gentlemen, integrity is the thing. Integrity is the most important thing to become an officer. Integrity का मतलब ये हुआ doing good things when nobody is watching you. The meaning of integrity is doing good things when nobody is watching you, gentlemen. Usually what we do कि जब दुनिया देख रही है तब तो हम अच्छे काम करते हैं, but when nobody is watching you, उस समय हम दुनिया के सारे गलत काम करने को रेडी होते हैं. तो आपकी इंटीग्रिटी पे सवाल उठ जाएगा. You should have integrity, gentlemen. You should have. Adequacy या adequate, पर्याप्तता. You need to have adequate data. You need to have adequate knowledge to talk on a topic. On the very first day I told you, gentlemen, start reading books, start gaining knowledge, start gathering knowledge. अगर वो डाटा आपके दिमाग में रहेगा तो whenever you will have time, for sure with confidence you will be able to express your point of view. बट अगर आपके पास चीजें ही नहीं बोलने के लिए तो what will you say? अगर मैं बोलूं कि tell me about Indo-Russia relation, आपको अगर पता ही नहीं होगा कि इंडिया कहां है, रसिया कहां है, हम दोनों की हिस्ट्री कहां रही है, सोवियत यूनियन क्या था, यूएसएसआर कब टूटा, यूएसएसआर ने कब हमारा साथ दिया, तो आप कैसे बात करोगे? नो मैटर कितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, बट नॉलेज मैटर्स. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एडिक्वेसी की बात आती है. टाइमिंग्स, कब क्या बोलना है, कितना बोलना है, ऑल दिस थिंग्स आर पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. All these things are part of communication, gentlemen.
आपने सुना होगा ना कि यार ये बहुत बोलता है, बिना मतलब बहुत बोलता है। तो अगर नो मैटर कितनी अच्छी बातें करेगा, लोग आपकी बातों से इरिटेट हो रहे हैं, तो आपको अपनी बातें कम करनी पड़ेंगी। समझे नहीं? कहां बोलना है, कितना बोलना है, क्या बोलना है, ये सब पता होना चाहिए। और ये आपको कोई बताएगा नहीं, आपको खुद सीखना पड़ेगा। These are some self learning things. Understand? If you are sitting in front of interviewer, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपना मुंह कितना खोलना है वहां पे। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। He'll try his best कि आपके अंदर से वो चीज भी निकलवा रहे जो आपको बाहर कर सकती है वहां से। तो ये आपको पता होना चाहिए वहां पर जनमैन, that this particular thing I don't need to mention. Right? For example, let's say I have a friend, he's like my elder brother. Right now he's serving in Indian Air Force. When he appeared for SSB, the interviewer asked him that, gentlemen, do you have girlfriend? And he said, no sir, I had. And the point he said I had, he said more than the requirement. उससे पूछा क्या था कि क्या गर्लफ्रेंड है, वो सिंपली बोले थे yes or no। उन्होंने क्या बोला कि नहीं है बट थी। अब थी से कहानी एक चालू हो गई वहां पे। You give a point to your interviewer gentleman that कि थी, तो then he asked me तो अब क्यों नहीं है? What happened between you and her? What was the reason of breakup? तुमने चीजें ठीक क्यों नहीं की? सवाल उठ गया इसके ऊपर कि इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसके अंदर कम्युनिकेशन नहीं है, इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसके अंदर रिलेशन मैनेज करने की कैपेसिटी नहीं है, तो ये फौज क्या मैनेज करेगा? And unfortunately he got conference out, and in his next SSB the same gentleman got recommended, and right now he is serving in Indian Air Force. This is what timing can do gentlemen. It is very very important to know what to say, how much to say and when to say. बहुत ज्यादा जरूरी है ये, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब गुड कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए कुछ टिप्स जो आपको ध्यान में रखनी है। मेंटेन आई कांटेक्ट विद द ऑडियंस। अब ऑडियंस, इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, यू आर टॉकिंग टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल, यू कांट मेक आई कांटेक्ट विद ईच एंड एवरीवन, बट यू विल हैव टू लुक अराउंड देम। ऐसा नहीं है कि आप केवल इधर देख के बात करोगे तो इधर वाले लोग डेफिनेटली आपको नहीं सुनेंगे, अगर आप इधर देख के बात करेंगे तो इधर वाले लोग नहीं सुनेंगे। यू विल हैव टू मेक कांटेक्ट विद ईच वन ऑफ देम। आपको हर तरफ कविता देखना, कविता देखना, कविता देखना है, और आपके जेस्चर्स ऐसे होने चाहिए कि हर इंसान को लगे यू आर टॉकिंग टू हिम ओनली। Yes or no? This is what this thing can do. And when you are sitting in front of interviewer, you should look in his eyes. This shows a kind of confidence that, yeah, ask me anything, I'm ready to answer. Ask me anything. Shoot me with the toughest bullet that you have, I'll handle that. You should have that confidence, right? ऐसा नहीं होगा कि he is asking you something and you're just looking at the sky and you're thinking about that I'll fly Su-30 MKI here only. Gentlemen, you'll not be able to fly Su-30 MKI. You'll have to look in the eyes of that gentleman. Yes or no? Body awareness, very very important. As I told you, if you are sitting in front of the interviewer, there is a way that your back should be straight, your hands should be on your thighs. You should not move your legs. You should have a smile on your face. Gestures and expressions. Gestures and expressions. You should have a smile. Right? You should have knowledge to convey your thoughts. Yes or no? You should have knowledge to convey your thoughts, gentlemen. You should have idea that how to put up my point that everyone would get agree to me. What is the eligibility to become a fighter pilot? There is a tough medical criteria. There is a certain height system you'll have to go through. That notification. Thus you'll have to go through the notification, gentlemen. Right? Practice effective communication skills. I'm mentioning again and again this word, practice. Practice is the key to improve. You'll have to practice, whether it is mathematics, whether it is English, whether it is communication. Practice is the only thing that can make changes, that can make huge differences. If you'll not practice these things, you'll for sure not improve. If you'll not change the work, you'll not be able to change the result, gentlemen. Remember this. You'll have to work on each and everything and each and every day. At the end, the conclusion. What will be the conclusion of this session? The conclusion is that it's only you who can help you in improving your communication. You will have to put efforts, whether by reading books, whether by reading journals, whether by listening podcasts, whether by practicing in front of people. If you don't have anyone, gentlemen, then only you can use your front camera. Front camera is better than mirror. Why is the front camera is better than mirror? Gentlemen, because if you are recording something, you'll be listening to all those things. And then you can analyze your mistakes, that this is the point where I should have a high pitch and this is the point where I should have a low pitch. And you will work on your modulation after that. Right? Conclusion number 2, that to be a good orator, you need to be very good listener. Right? To be a good orator, gentlemen, you need to be very good listener. अगर आप 1000 चीजें सुनेंगे तब जाकर के आप 10 चीजें बोल पाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि you just listen 1000 things and you'll speak 2000 things. No, not at all. If you are listening 100 things, you'll be able to speak 10 things only. So be a very good listener. Then only you'll be able to be a good orator. Understand? Third conclusion, communication is the thing which can ease your task. Like you are going to some office for certain kind of work, nobody is listening to you because you're not saying effectively. Talk to them effectively and for sure they'll do your work. Right? Second thing, at the end, I just want to say, gentlemen, most of you are facing some difficulties in English. Start reading books, start practicing, start talking to people in English, and top of all, start thinking in English. Whenever we try to speak English, what we usually do, we make a sentence in Hindi in our mind, then we translate it into English, then we speak, and it takes a lot of time. So better to think that particular sentence in English only. You'll not be taking any extra time to translate that thing. Right? Gentlemen, this is what you have to do. At the beginning, you don't need to focus much on your grammars and all. You just start talking to people, and the requirement of Forge is only this much, that if you are able to convey your message and if you are able to understand what the person sitting in front of you is saying, this is the level of English that they're looking for. They're not looking for William Shakespeare. They are looking for just an Indian person who can convey his message in English and can understand people's message. This is nothing, just this. So don't think much कि सर उसकी इंग्लिश इतनी ज्यादा फटाकेदार है, तुम्हें उतनी फटाकेदार इंग्लिश से कोई आवश्यकता नहीं है बाबू. Remember this. Yes or no? Hope this session will help you. I hope this session will help you, and
You all will work on the things, you all will work on the point that I had mentioned, and I hope you enjoyed the session, gentlemen. सर जब तक छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे. वेरी गुड मेरा भाई. This the attitude that Fauzi is looking for. जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं. Hope you all like the session. We'll meet soon. कल भी शायद हमारी क्लास है. सर कल भी हमारी क्लास है. तो we'll meet tomorrow also and we'll talk on some other topic. मजा आया होगा for sure. Keep working on this thing, gentlemen. It will ultimately improve your communication. It will ultimately improve your personality. And at the end, you all have to be a good leader. So first of all, be a good human being, right? And then तब तक के लिए जाओ, हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, अपना ख्याल रखो. Ladies and gentlemen, have faith in yourself. You are going to make it this time. India is waiting for you. तब तक के लिए जय हिंद.